Anga manga daro juzo jen jiwa jiwa zeman zajen Tenda mebra zela chanzalo Chiden chedan tebra jawa Kana mato panshe zumori Kordan doze tala geba Chaje jora zela chanzalo Kale zawa yirbo meze Chine zunde kala shine jan Chuden namda dudo nire Abdo zumbra zela chanzalo Tumbe zanjo dobra gondin Elen zani tumbe loto Kaya chaze tunde tarjene Samden chane zela chanzalo Toma mene baba danyashe Manga dai janjo shindong Shindong miyo mabra sanjene Zancho zabra zela chanzalo Tuje dola jodo zinene Wara nase la soni jo Chuje kama kame dozana Tepa sumla goze sanzal Shenje dola mambra tarjene Mutek tamba judan lesin Kormo jibe yildo benamdo Tuba yile jala sanzal Siba sumna plene yendenji Nando yabra chenjo chenbo Ane dawa kunje rajode Temba jabra jala chanzal Chenan jela kunje je Zengje genge saje zangmaro Chime doje dawa kushe Dangan dabra zela sanzalo Yanda nyedo zeba meze Mahon semjen sunan zazeje Dine dune rinse mando Kudun jeje jela chanzalo Gangze genge zolo jedam Sachen dela damba dambrone Ane jikden dena jeje Geze geba jela chanzalo Tangbe gaten laye yune Shage gado yunge lumzo je Lumbe ni sazo taba Chumden laye lala chanzalo She kando mama jeje Sheje jondo shende ro jeje Serje neso sanzon kando Sezo tsume gola chanzalo Chongje goje jebe chumbe Shede nanda jogo jase Neren zamin Dine dala chanzalo Jalbe kado lonche no Yangba jendo te jangzebo Manga daro toba ngosanje Chimbe ishen barla chanzalo Wara nasi cheje koroko Zede zando chenchul chenpo Zamcho dundo gomba nyanyende Tune namka dala chanzalo Kedra tenbe tabo chumdenje Jibe zola duzum toba Kewe dola kunje jabaya Yeshe nige zandan zumbar Shu shagi gelbo chego chinta Korban kuze zendan shikamda Cheche zenja zango chinta Kina gana dazo jora Chela chedo zola tabe Dazo ganda nebe sacho so Nedan ugon dazo Chedan tashi bawara ziko so Tikwa jia meja ji Gewa kumzun tsokra ji Rangi selmi yonso Inde sange tenba Karma rabre marmeda Juma ziba chiburda Namodan jida Tuje chenam de darda Pomen chuje venche podando Tuzum sanje kunje gawanye Rangse chukur uzun kunjirwe Tsawe lame shabla ki chan tsalo Yenden sanje kundan jamnaya Kajen sanje kunne lobeji Tsawe lame shala solwande Nelo jula tabra jinje lo Sanje kundo tsawe lamala Kusum goba chimbe solwande Tombe nelo rango shibat Sedan doba nyambra jinje lo Hona namkatan jembe simjen tamje kamzum korwa Dungoji jamso le jalte namba tamje chimba sunjo durje changam Sangje je gopon la gopra ja Deye chido tambe chu Tuzum gozum je tangje tena bebra jao Nyambaye kunlong jenche chido sim kipa Hundu jine tambe chu simbra shu Telayang gang simbe chuni Jagarji pendita chimbo Lobon kamala shila dini ji sungbe Gomrim toda basum sum yobanang le gomrim barba Shibika inbe loma chenam ji sema imbara jine Tsechik du sembara ju तो बहुत लंबे समय के बाद दोबारा क्या कहते हैं धर्म क्या कहते हैं भगवान बुद्ध का धमची अमृत रूपी वाणी अमृत वाणी को पान करने का मौका दोबारा मिला हम लोग को यहाँ सौ पद्मा में जहाँ लोपन जी गुरु पद्मा जुंगने पद्मा संभवा जी ने 8वीं शताब्दी में तप करके यहाँ पर चमत्कार दिखाया था। ये झील का जो जहाँ पर राजा ने जलाने की कोशिश किया था वो जो है तेल जो है पानी में परिवर्तित होकर झील के बीच में
लोपोरम्बची जी का दर्शन हुआ। ऐसे पवित्र स्थल में जो है हम लोग कई सालों से धर्म का अमृत पान करते आ रहे हैं। तो इस साल मैंने फैसला किया कि कई बार धर्म का प्रवचन करते करते हम लोग क्या कहते हैं उसमें हम लोग व्यवस्थित हो गए, मतलब एक आदत जैसा बन गया धर्म को सुनने का ना। मैंने फिर सोचा कि धर्म को सुनने के साथ साथ कुछ कौम जमने के बारे में भी आना चाहिए ना। केवल धर्म को सुनते सुनते एक कान से सुनते दूसरे कान से छोड़ते गए तो फिर जीवन तो एक अमूल्य धन है और ये जीवन जो है अनित्य है। एक दिन सबको मर के जाना है, गुजर के जाना है और एक एक क्षण में हम लोग छिवा मितापा की और जा करके एक एक क्षण में हम लोग मर रहे होते हैं, आप सीधा सीधा बताए तो। लेकिन हम लोग समझते हैं कि हम लोग जिंदा है, जिंदा है, जिंदा जिंदा कहाँ है। हम लोग हर क्षण में हम लोग भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, मतलब हमारा जो जीवन जो है खत्म होते जा रहा है, छिवा मितापा है ना। तो धर्म को सुनने के साथ छिका न्यमलिन संगे चुमलिन देव जी ने, भगवान बुद्ध जी ने 3 प्रकार के जो मेन धर्म को बताए थे, उसको कहते हैं हमारे छस में थे सम गम सुम बोल के मैंने कई बार बताया आप लोगों को। थे सम गम सुम उसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान, चिंतन ज्ञान, भावना ज्ञान बोल के ऐसा हिंदी और संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। शुद्ध ज्ञान मतलब पहले हमको छस को सुनना पड़ता है, बिना सुने छस आपको पता नहीं ले सकता है। इसलिए जो भी गुरु है उसका एक अपना कर्तव्य बनता है, उसका एक अपना वो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिम्मेवार होता है कि अच्छे ज्ञान का पान जो है अपने शिष्यों को कराएं, लोमा संगो को जो है छस के बारे में बताए। तो वो छस के बारे में हम लोग बताते आ रहे हैं और हर कोई गुरु जो है अच्छा गुरु हो तो सबसे पहले छस को बताएगा। छस को बताना जरूरी है, बिना बताए छस को समझ में आएगा ही नहीं, धर्म समझ में आएगा नहीं। तो वही थे बोल के सुनना है, थे धर्म को सुनना है बोल रहे। जब संगे चुमलिन देव जी जीवित थे तो 45 साल तक वो पूरे जगह में भ्रमण करते हुए छस की खोलो कौरव के धर्म चक्र का प्रवर्तन किए थे, धर्म को छस बताए थे। बता करके जिन्होंने अपने मन में ग्रहण किया, उसको संभाल के रखा, उसको संभाल के रखा, उसको चिंतन कहते हैं, सम बोलते हैं। पहले सुनने के बाद मन में संभाल कर रखना होता है, उसको सम बोल के अंदर अच्छे ज्ञान को संभाल के रखना पड़ता है। अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो दिवा डिलेन करके प्रश्न करके किसी अच्छे गुरु से दोब्बा खत्म कर देना चाहिए। थेतम जो बोलते हैं हमारी भाषा में, संदेह जो होता है, डाउट जो होता है, उसको खत्म करके धर्म को अच्छी तरह से समझना चाहिए। उस समझने को चिंतन बोलते थे, उसको चिंतन। और उसके बाद भावना, जो चिंतन किया है उसको फिर अपने चरित्र और आचरण पर उतारना पड़ता है। चरित्र और आचरण पर कैसा उतारना पड़ता है? मेडिटेशन के द्वारा, गम के द्वारा। गम किसको कहते हैं? गलत आदत को छोड़ करके अच्छे आदत को धारण करना, उसको गम कहते हैं। बुरे भावना को छोड़ करके अच्छी भावना को लाना, जो थे सम गम। जो धर्म को सुना उसको संभाल के रखना है मन में। संभाल के रखने से नहीं वो होता है, फायदा होता है। उसको फिर गम जमलम में डाल करके वो अपने चित्त को सुधारना है, स्वयं को सुधारना है। इसीलिए संगे चुमलिन देव जी ने हरंगी समली यंसु दुल देने संगे तनबा ही बोल के, धर्म को सुनने मात्र से कोई फर्क होता ही नहीं है, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है। धर्म को सुनने के बाद उसको मनन करना चाहिए, मनन करने के बाद उसको आचरण में लाना चाहिए, तब हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। मानवता हमारे अंदर आ जाएगी, इंसानियत हमारे अंदर आ जाएगी, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, प्यार मोहब्बत आ जाएगा और दूसरों के साथ भी प्यार मोहब्बत करने का आपके अंदर चाह उत्पन्न होगा, उसका मन उत्पन्न होगा। तो ऐसा करते करते खमसुम खोरवा दूंगा जी ज्ञासों के जितना भी संचयन थमची है वो अपनी माँ के समान आपको दिखाई देगा। अपने माँ के समान जब आपको दिखाई देगा खमसुम खोरवा का संचयन साहब, तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसी के प्रति आप द्वेष करें, राग करें, मतलब दुश्मनी करे, किसी को मारे, काटे या गाली दे, प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी आपको माता जैसा दिखाई देगा, तो कैसा आप उनके साथ दुश्मनी कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। वही बात संगे चुमलिन देव भगवान बुद्ध जी ने हमारे को सिखाया था, लेकिन हम लोग सब भूल गए। हम लोग कैसे भूल गए? हम लोग ने समझ लिया कि धर्म का अर्थ घर में चौखंग बनाना, भगवान बुद्ध जी का मूर्ति स्थापित करना है ना, छक करना, मरमे जलाना, कोरा करना है, किसी बड़ा गुरुजी आया तो सिर्फ उनका दर्शन करना, इतने मात्र को हम लोग ने धर्म समझ के बैठा। बहुत गलत फहमी है। इतने मात्र से धर्म नहीं होता है, वो तो धर्म का एक साधन है, एक संकेत है।
असली धर्म तो अपने मन को खुद सुधारना है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने लोगों को कहा कि अपने मन को सुधारो, पवित्र करो, शुद्ध करो। उस शुद्ध मन के ऊपर, उस पवित्र मन के ऊपर, उस सच मन के ऊपर कहां से करुणा जागेगी? उस मन के अंदर करुणा जागेगी। करुणा मतलब निंजे आएगा उसमें। अब कहां पर मैत्री की भावना जागेगी? दूसरों से प्यार मोहब्बत वाला मैत्री की भावना, लविंग काइंडनेस बोलते, कहां जगेगी वो? उस तरह के शुद्ध चित्त के अंदर जागेगी, है ना जी। और जो विजडम कहते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं कि संसार जो अनित्य है, एक दिन सबको गुजर के जाना है, हर एक क्षण जो है हम लोग गुजरते जा रहे हैं, चाहे बाहर का सामान हो, अंदर का शरीर हो, हमारा मन हो, सब एक एक क्षण में, एक एक मिनट में क्षण बंगूर है, छिवा मितक पर एक एक क्षण में गुजरते जा रहे हैं। वो ज्ञान कहां जगेगा? जब आपका मन पवित्र हो, शुद्ध हो, असलियत पर टिका हो, उस मन के ऊपर वो जागृत होगा ना। तो वो साफ मन जो है किसको बनाना है? हमको खुद को बनाना है ना। किसी लामा के दर्शन मात्र से आपका मन साफ होगा? कभी नहीं होगा। हाँ? किसी धर्म को सुनने से केवल मन साफ होगा? नहीं होगा। धर्म को सुन करके कैसा साफ करना है, उस विधि पर आप चलेंगे तो तब साफ होगा ना। तो ये संघर्ष चंदन ने छस ये सिखाया, समझ गया ना। हम लोग छस कभी समझते ही नहीं है, बहुत अजीब लगता है मेरे को। अब दुनिया भर में चक्कर काटते हैं, पिछले 16 अगस्त से लेकर अभी तक मैं बाहर देशों में था, 16 अगस्त से लेकर, है ना। अब लोगों को यही सिखाते, यही चीज जो आपको सिखा रहा हूं, यही लोगों को सिखाया। मैं नहीं सिखा रहा हूं, संजय चंदेल देव जी ने जो निचोड़, जो धर्म का निचोड़ बताया, उसको बताना है। हम तो एक माध्यम है, हम तो एक ब्रिज का काम करते हैं कि एक बीच में बहुत बड़ा खाई है, इस तरफ संसार है, उस तरफ निर्वाण है, इस खाई को कैसा पार किया जाए। तो खाई को पार करने के लिए छलांग मारेंगे तो आप वहां पहुंचेंगे नहीं, नीचे के आप मर जाएंगे। वहां पार जाने के लिए या तो कोई पुल चाहिए, उस पुल का काम हम लोग करते हैं, उस पुल को का काम हम लोग करते हैं। पुल पर चढ़ने का काम किसने किया? संजय चंदन दास ने किया। उन्होंने कैसा बताया है उसको हम लोगों को बताते हैं, और जिन्होंने सुना, जिन्होंने उसका आचरण किया, नियमन किया, वो लोग तर जाते हैं। जो आचरण नहीं करते हैं ना, वहीं का वहीं बैठ जाते हैं, टस न मस। चाहे जितना तीर्थाटन करो, जितना कोरा करो, जितना मन में चलाओ, जितना गेजर करो, फायदा होता ही नहीं है, क्योंकि दिखावा मात्र करके रहते हैं। मन को किसी ने देखा ही नहीं है। सबसे पहले मन सुधरना चाहिए। वही मन सुधरने का ढंग जो है कमलाशिला जी ने गोमरिम के अंदर बताया गया। ये गोमरिम मेरे को बहुत गुरु से प्राप्त हुआ। सीधा सीधा कहे तो गलवा रिम्पोचे जी से 3-4 बार प्राप्त हुआ है। 2 बार दुर्जयदेव में, 1 बार वाराणसी में, उसके बाद कई लामा और रिम्पोचे जी से ये प्राप्त हुआ। फिर मैंने सोचा यार अब इस चीज को आप लोगों को सरल भाषा में बताना चाहिए ताकि लोगों को पता लग जाए। तो थे सम गुमसुम, धर्म को सुन करके, केवल सुनने मात्र से फायदा नहीं होता है। कहने का मतलब उसको मन में ग्रहण करना चाहिए, फिर गोम जमन करके फिर करना चाहिए, मतलब यह है। तो आप सभी भाई बंधु, मैं देख रहा हूँ कि कई लोग, पहले हम लोग यहाँ प्रवचन करते हैं, आप लोग सुने हैं, सब चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। तो आप लोग कान खड़ा करके तो अच्छी तरह से सुन लीजिए। धर्म का पान करना बहुत कठिन काम होता है। धर्म का पान करना आया तो आप तर जाए। जो भी अच्छा गुरु होता है वो ज्यादा प्रवचन करेगा और सरल भाषा में प्रवचन करेगा। प्रवचन करना सबसे बड़ी धर्म की क्रिया है। दर्शन मात्र से कुछ नहीं होता है। दर्शन तो भगवान बुद्ध जी का लोगों ने किया है, लेकिन देख करके वो वहीं का वहीं रह गए। जिन्होंने भगवान बुद्ध जी का दर्शन किया, उनके प्रवचन को सुना, उसको थे सुना, सम मन में ग्रहण किया और गम बोल के गम किया, तो वो लोग तर गए। वो शारी पुत्र, शारी भूल डाचंबा हो गए, महामुद्गलयान पुत्र डाचंबा हो गए। और जिन्होंने पूरा उम्र जो है भगवान बुद्ध के चेहरे को देखते रहे, वो संसार में ही बैठा रहा है। ऐसा कई जो है कथा जो है भगवान बुद्ध के सूत्र के अंदर आ जाता है। मैंने बताया ना, कुंगाओ जी संजय चंदन देव के जपची थे, उनका परिचारक थे आनंद जी। 20 साल तक आनंद जी भगवान बुद्ध जी के साथ छाया की तरह लगे रहे। उनके लिए भोजन का व्यवस्था करना, कपड़े का व्यवस्था, जपची मतलब जपची जिसे कहते हैं। लेकिन संजय चंदन देव गुजर जाते हैं, मतलब शरीर छोके जाते हैं, गोम्पा चौकसी करते हैं, परिनिर्वाण को ग्रहण करते हैं। कुंगाओ अभी तक डाचुंगा नहीं हो पाया। समझ गया ना? वो गुरु के साथ बैठने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ गया ना? गुरु जो कहते हैं उस बात पर चलने से तब बात बनती है। समझ गया ना? भगवान बुद्ध ने भेड़ चाल कभी नहीं सिखाया। भगवान बुद्ध ने भेड़ चाल कभी नहीं सिखाया। भगवान बुद्ध ने जगाना सिखाया, सजग रहना सिखाया।
मन के अंदर खोट को दूर करना सिखाया, मन के अंदर दागजिन दोचा जेदंग तिमुक ठदो नजर को दूर करना सिखाया, किस तरह से क्लेश को दूर किया जाए, काम, राग, अज्ञान, द्वेष, ईर्ष्या। जितना जितना हमारा मन नमतों से हटते जाएगा उतना उतना हम साफ होते जाएंगे, साफ सुथरा होते जाएंगे। वही संघर्ष के क्षोभ का मूल कारण यही है। आजकल कभी कभी किसी गांव में जाते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, फिर वो मंदिर का चर्चा चलता है, आपका मंदिर तो बहुत अच्छा है, कितना सुंदर, कितना पैसा गया, कितना सुंदर है। यह है मंदिर सुंदर है या कितना पैसा गया नहीं गया, धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं है। मंदिर बना अच्छी बात है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? मंदिर बना अच्छी बात है, पैसा डाला अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर क्या गतिविधि चल रहा है, यह सबसे बड़ी चीज है। उसके अंदर अच्छी गतिविधि चल रही है, सपा गे चौड़ा में सोचों करते हैं, सही में सोचों करते हैं, कोई गुरुजी को बुला के गोम जमलिंग करते हैं, मन को सुधारते हैं, शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, मन को तंदुरुस्त रखते हैं, लोक कल्याण की भावना करते हैं, मोलम लगाते हैं, छम में कोरा लगाते हैं, तो उस बड़ा आलीशान मंदिर का मतलब बन जाता है। वो सही में मंदिर है। केवल मंदिर बहुत बड़ा बना दिया, सुंदर है बहुत, और फिर उसमें बैठ जाता है, चाय का बंदोबस्त, खाना का बंदोबस्त, गप्पे मार रहे हैं, गांव पूरा गांव पे गप्पे मार रहा है कि क्या है, यह है, देखो हमारा यह है, वो है, तुम्हारा तो गया गुजरा है, हमारा मंदिर तो इतना अच्छा है, यह है, वो है। जो करना चाहिए था वो नहीं करके, संसार में जैसे घर परिवार में बहस नहीं चलता है चूल्हा के पास, वही बहस मंदिर के चौखट में जाके करोगे तो उस मंदिर का क्या मतलब है? चाहे संगे चमदंदी का कुंडा हो, चाहे कुंडा हो ही नहीं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है सम के लिए अधिक बोलता, सम का नमलिंग करना बहुत अच्छी बात है। क्यों अंकित जी, ठीक है ना? तो यही जो है करना है। अब मैं ज्यादा बात नहीं करके आप लोग पूरा अंशो टूम करके सुनो। आपको मैं अमृत पान कराता हूँ भगवान बुद्धि का, गोमृम जिसे कहते हैं। गोम नमलिंग क्या होता है असली कल आएगा, तो यहाँ से जो मैं पढ़ के जाता हूँ आप बता रहा हूँ। अब गोमृम जो है कमला शिवा ने एक बार बौद्ध में संघर्ष के तंपा बहुत प्रचार प्रसार हुआ था ना, बौद्ध का मतलब तिब्बत में प्रचार प्रसार हुआ था। उसके बाद वहां पर उथल पुथल मच गया, हर एक लोगों ने अपना अपना छुड़ुक स्थापित कर दिया, और जो है संघ चुमनिधि की जो परंपरा जो है मत मटोला गंदा हो गया। एक चाइना से एक लामा जी आ गया, हाशंग हो गया ना, उन्होंने एक अपना स्थापित कर दिया। लोग उसके पीछे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खाते पीते मौज करो, नमतो मत करो, नफरत मत करो, जो भी करेगा तो असली धर्म है बोल के इस तरह से धर्म आ गया वहां पर। फिर उस दिन में कमला शिवाजी वहां आए तो वहां के जो असली छसवा लोग हैं इनको रिक्वेस्ट किया, यहाँ तो उथल पुथल मच रहा है, क्या किया जाए, बहुत लंबी स्टोरी है, उसको नहीं कहा जा सकता है। तो फिर कमला शिवाजी ने इस ग्रंथ का निर्माण किया, गोमृम थुम था भरसुम। थुम था मतलब पहला चैप्टर, भर मतलब बीच का चैप्टर अध्याय, और था मतलब लास्ट का चैप्टर। फिर इसके द्वारा असली छस कैसा किया जाता है उस रास्ते को दोबारा शुद्ध किया। फिर बौद्ध में जो है, तिब्बत में जो है दोबारा गुरुमछे और क्या कहते हैं खेम्पो शिवात्सो और जी ने जो छस किया था ना, उसको दोबारा सुधार करके अच्छी तरह से स्थापित किया। तो इसमें गोमृम मतलब गोमजा क्या है, गोम की रिंपा क्या है, मन को कैसा सुधारना है, कैसा आप आगे अपने मन को शुद्ध रख सकते हो। संगे चुमदिन जी का जो जिल्लत था सम के अंदर, उसका परंपरा जो है, लुक जो है कैसा है, उसको यहाँ बताया जा रहा है। तो आप लोग सुनिए, ठीक है? मैं पढ़ते जाऊंगा और इसका व्याख्या करते जाऊंगा। जागृत की तो भावना कर्म भूख की तो गंभीर रिंपा चंबल जुर्बाला छक्सा लोग बोलते हैं। भारतीय भाषा में पूरा छस पहले भारतीय भाषा में था, संस्कृत भाषा में था, पाली भाषा में था। उस भाषा में इस ग्रंथ का नाम भावना कर्म, मेडिटेशन, इंग्लिश में स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। किस तरह से गम लगाना चाहिए, मन को कैसा सुधारना चाहिए, कैसा हम आगे चले, उसके बारे में बताया गया। तो कर्म जो कैसा हो उसको बचकर में बोलते तो गंभीर रिंपा से। हम गम की रिंपा क्या है, किस तरह से गम लगाना चाहिए, मन को कैसा सुधारना चाहिए, ये फिर ये इसको पहले ये संस्कृत में लिखा गया था, फिर तिब्बतन भाषा में अनुवाद किया गया था। जो खेपा लोग होते हैं, जो भी बहुत आचार्य लोग होते हैं, पहले किसी पुस्तक को लिखने से पहले हिदम के ला को छक्छल करते हैं, नमस्कार करते हैं अपने इष्ट देव को। और ग्रंथ से संबंधित सबसे बड़ा इष्ट देव जो है जम्पल यांग है, मंजूश्री जो जम्पे यांग जो संज्ञ का हिस्से का वो है, संज्ञ का ज्ञान का स्वरूप जम्पे यांग है। इसलिए हम भी कभी बच्चे लोग को पढ़ाते हैं स्कूल में, अगर बुद्धिस्ट होगा तो उनको ओम आरा पचा नादी बोल के मंत्र से अवगत कराते हैं, उसको रटने के लिए कहते हैं और उसको भावना करता ताकि उसके अंदर बुद्धि आ जाए, ऐसा ना। तो यहाँ भी इस ग्रंथ की पूरा सफलता पूर्वक प्रकाशन के लिए जो है कमला शिला जी खूब
मैं सबसे पहले नमो मंजूश्री कुमार भूताया, मैं सबसे पहले जंबेयों को छक्षल करता हूँ, ऐसा बता रहे हैं, ताकि ये ग्रंथ जब मैं लिख रहा हूँ इसमें कोई मेरी अपना गलत वो ना जुड़ जाए, गलत क्या कहते हैं दर्शन ना जुड़ जाए, गलत विचार ना जुड़ जाए। जैसे भगवान बुद्ध ने कंजूर के अंदर जो गमरीन का वो बताया वो निचोड़ के रूप में सब आ जाए, उनके सबसे पहले उनको नमस्कार करते हैं, ठीक है। थेपा छिंबे दोदे सुंजी जेसु जुबा नमजी गंबे रिंबर धर शिपा थेपा छिंबो। अब थेपा मेंपा थेपा छिंबो थेपा दर्जे थेपा वो कहते हैं। एक होते हैं थेरावादीन बुद्धिस्ट, महायाना बुद्धिस्ट एंड वज्रयाना बुद्धिस्ट। उसमें से भी महायान में जिसमें जंगशुक सेन का बहुत बड़ा क्या कहते हैं महत्व है। जंगशुक का सेन नहीं हो तो संगेश का निम्नलिखित कर ही नहीं सकता है। तो उस आधार पर महायान के आधार पर भगवान बुद्ध जी ने जो प्रवचन किया था और उसमें किस तरह से गम नमन करना चाहिए उसकी विधि विधान को यहाँ पर मैं संक्षिप्त में लिखने जा रहा हूँ। ऐसे कह रहे हैं कमला शिवा जी है ना। तेला थमची छिंपा निश्चिंत निर्दो थोपरा दोपा तोपा दम ढेंबे दे थोपरा जिबे जो नमदन चे नमला मुमरा चुमरा जाओ। कह रहे हैं कि कमला शिला जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कमला शिला लोपन कमला शिला क्या कह रहे हैं, अगर आप सही में भगवान बुद्ध के प्रवचन के ऊपर चलना चाहते हैं, उसमें भी महायान थेपा छिंपो जिस रास्ते से जा करके आपको संघर्ष के गोपंग मिलता हो, उस रास्ते पर जा करके अगर बुद्धता की प्राप्त करने की आपके अंदर जिज्ञासा हो तो जो भी कार्य है भगवान बुद्ध के अनुसार सब कारण और प्रत्यय से उत्पन्न होता है। एक कारण चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली आसमान के पीछे जो ऊपर वाले मुझे दे दे बोल के, यहाँ कोई गुंजाइश है ही नहीं है। ये भगवान बुद्ध जी मानते नहीं, ऊपर वाला है ही नहीं तो ऊपर वाले से क्या मांगेंगे। ऊपर तो खाली आसमान है तो लोगों का मनगढ़ंत बातें हैं, ऊपर वाला। और हम लोग बुद्धिस्ट होते हुए भी ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छे चल रहा है कहते हैं, गलत बात है। तो यहाँ कहते कि जो भी कार्य सिद्ध करना हो ग्यू और चन होना चाहिए। ग्यू और चन पूरा होगा तो फिर उसका डेबू मिलेगा, है ना। खेत में अगर आपको फसल अच्छा चाहिए तो पहले खेत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद खेत अच्छा होने से मात्र नहीं चलेगा, साबुन होना चाहिए, बीज होना चाहिए। बीज होने से भी नहीं चलेगा, पानी होना चाहिए, खाद होना चाहिए, उसका जो है परवरिश अच्छा करना चाहिए। कहीं कौवा तो नहीं चुग रहा है, ये सब अच्छा करेगा तो बाद में फसल अच्छा है ना। उसी तरह ये गोम का रिंपा के जाते समय भी व्यू और केंद्र के होना बहुत आवश्यकता है। मन कैसा होना चाहिए, शरीर कैसा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए, तो उस पर हमें कोशिश करना है। उस व्यू और केंद्र प्रति के बारे में वो बता रहे हैं। तेतरा थमचे छंबा निप धीने जुम नेपाले जुंगरा मिरुं के थमचे चंग द्वि थमचे तो थमचे छंबा नि तो जुंगरा थलवर जरूरी छिरो से तेतरा। इसलिए यह कहता है कि थमचे छंबा मतलब संजस का जो गोफंग जो है, बिना कारण से संजस का गोफंग मिलता ही नहीं है। भगवान बुद्ध जी हमारे तरह एक साधारण इंसान थे, हम लोग की तरह, हम आपकी तरह। उन्होंने देखा कि संसार दुख का घर है, सत्य क्या है उसको खोजने के लिए घर बार छोड़ा। चंगचुक का सन कैसे किया, बोधिचित्त का उत्पाद किया, फिर तप किया, अनेक गुरुओं के संपर्क में आए। उनका जितने भी गुरु के संपर्क में आए उनका रास्ते में कुछ अड़चन था, पूरा शुद्ध ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। फिर जाकर के किसी पेड़ के नीचे 6 वर्ष तक तपस्या की, जाकर के उन्होंने सत्य की खोज करके तब जाके भगवान बुद्ध बन गए। ऐसे ही भगवान बुद्ध ऊपर से नहीं टपक के आए। तो अगर वैसा ही अगर बुद्ध बन जाता है तो छस करने की क्या आवश्यकता है, सोच लो बुद्ध गए तो बुद्ध बन गए, ऐसा नहीं होता कह रहे। तो इसलिए कोशिश करना पड़ता है, कारण और प्रत्यय का होना जरूरी है। तोपा में पर जुन्ना नी गांगदू या थोपा मिरुं के गांगी ना थमचे चंपा नी तो मिंजुर रोज देतावे ना लालर झलम ना घाशी जुंदू जिबे मोपे थमचे ने जुले तोपा खोना ही नो। इसीलिए हर एक चीज जो संसार में उत्पन्न होता है, चाहे ज्ञान का हो चाहे संसार में उत्पन्न जो विशेषकर जो ज्ञान की बात जो है, कारण और प्रत्यय जुड़ना चाहिए, मन को सुधारना चाहिए, है ना। अच्छे कर्म को करना चाहिए, बुरे कर्म को छोड़ना चाहिए, मन की स्वभाव को समझना चाहिए, तब जाके बुद्ध की प्राप्ति होती है। संसार के में जितना भी काम है वो भी बैठे बैठे थोड़ी सिद्ध हो जाता है, उसके लिए कारण जुड़ाना पड़ता है, प्रत्यय जुड़ाना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, दौड़ धूप करना पड़ता है, तब जाके सिद्ध होता है ना। तो इसी तरह बुद्धता भी सिद्ध करना पड़ता है, मन को सुधारना पड़ता है, शरीर को सुधारना पड़ता है। बिना कारण से कोई बुद्ध नहीं बनता है, बिना कारण से कोई ज्ञानी नहीं बनता, बिना कारण से कोई योगी नहीं बनता। एक कारण होना जरूरी होता है, व्यू और केंद्र होना चाहिए, तब जाके। अब शरीर को स्वस्थ रखना हो तो आपको योग करना पड़ेगा, सांस को साफ करना हो तो आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम कोई हिंदू का विधि नहीं है, योग कोई हिंदू का विधि, योग तो योग है, शरीर को स्वस्थ रखने की विधि किसी ऋषि मुनियों ने खोज निकाला। प्राणायाम जो है
हमारे यहाँ काला चक्र में प्राणायाम है, आपने देखा, मैं आपको बताऊंगा बाद में। काला चक्र की जो दुखर वंचन बोलते हैं ना, उसमें प्राणायाम योग सब कुछ है, लेकिन आज तक किसी ने सिखाया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं सिखाते होंगे, सब है। तो इसी तरह शरीर को स्वस्थ रखना हो तो आपको शरीर पर ध्यान करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, तब शरीर स्वस्थ होगा। भोजन पर ध्यान देना चाहिए। अब सांस को स्वस्थ रखना हो तो सांस का अभ्यास करना चाहिए आपको। मन को स्वच्छ रखना हो तो फिर मन के अंदर विकार को हटाना चाहिए ना, तभी मन स्वच्छ होगा ना। ये सब कारण पर निर्भर होता है, इन कारणों को जानना जरूरी है। थंची छिंपा नीतु यंग लर झलम न गाजिक तु जुटे द्वि थमची तु माइंस ने थमची तु यंग माइंस थमची च माइन पे धी छिर धी नी जोदंग चन तो पर न्यूस जूदंग चन मतलब कारण पर निर्भर होना चाहिए। जूदंग चन देदा के नंगने चंग मनोर चिंग मथांग व मेपा नंबर टेम्परा जाओ, ठीक है। कारण और प्रत्यय से ग्यू और केन से गम नहीं करना पड़ता है, छत सुनना पड़ता है। वो भी ग्यू और केन जो है नौरचे करेगा, दोष युक्त, गलत कारण और प्रत्यय पर जुड़ेगा तो कभी स्थित नहीं हो सकता है। ग्यू केन के ऊपर ध्यान देना चाहिए बोलते हैं। जू नरवाला नेतन जेनानी यून रिंगदू रिंगो शिकी जंग दोबे देवो थपरा में दो। अगर आप गलत गुरु के शरण में गया है, गलत प्रवचन को सुना, उसी के साथ मान लिया, तो आप कहां जाएंगे? जाना है देवाचन के जिंघान नुपछोप में, और वो गुरु आपको ले जा रहा है शरछोप में, कभी देवाचन में पहुंचेंगे आप? सुखावती क्षेत्र संगे होपा में का जो सिंघम जो है नुपछोप में है, नुपछोप देवाचन की सिंघम। किसी गुरु ने बताया कि देवाचन नुपछोप में नहीं है, शरछोप में है, तो आप शरछोप शरछोप करके बैठे मन में धारण करते तो आप नुपछोप देवाचन में पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना, गलत हो जाएगा ना। इसलिए गुरु को मानने से कुछ नहीं होता है, गुरु को जानना पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है गुरु गेलोंग है या ngakpa है या योगी है, गुरु तो गुरु ही होता है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, जिस व्यक्ति के अंदर बुद्ध प्रवचन का पूरा रिकॉर्ड है, वो कभी गलत बोल ही नहीं सकता है। तो गेलोंग हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, गुरु है ना, समझ गया ना। गुरु होता है ज्ञान का भंडार होना चाहिए। गुरु जो भी प्रश्न है उसका समाधान होना चाहिए। गुरु का अर्थ होता है जो हमारे अंदर गुरु रूपी अंधकार, जो अज्ञान के अंधकार है, रू रूपी ज्ञान से जो प्रकाशित करने की ज्ञान जिसमें हो, कई बार बताया मैंने, वो गुरु होता है। गुरु का मतलब नहीं कि सिंहासन पर बैठ करके लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, टुआ दे रहे हैं, पानी पी रहे हैं। पानी पीने से आपका प्यास बुझ सकता है, आपका पाप धुल नहीं सकता है। टुआ लगाने से आपके गला में थोड़ा सुंदर जैसा लगेगा, लाल टुआ बड़ा अच्छा लग रहा है, नीला टुआ अच्छा लग रहा है। वो गला में दिखने से क्या हो गया? महल तो सब मन के अंदर है। गला में टुआ लटकाना और बिल्ली के गले में घंटी लटकाना एक ही बराबर है। अगर धप्पा धमसिंग नहीं है तो, मन सुधर नहीं है तो क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। ये फैशन चला होता है कभी कभी, समझ गया ना। फैशन चला होता है, टुआ का फैशन चला होता है, वांग का फैशन चला होता है, समझ गए ना। वांग बहुत अच्छा चीज है, लूंग बहुत अच्छा चीज है, लेकिन सबसे पहले तो मन साफ होना चाहिए ना। मन में वाला कड़वापन, इस गुरु से वांग लिया जी, लूंग लिया जी, क्या फायदा है? फायदा नहीं, समझ गया ना, फायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले सम संको को रहता है। सम संको हो तो सब है। गाना भी गाओ तो सम संको हो तो चोर बन जाता है। माने गाओ तो सिम तुझा हो तो जहर बन जाता है। समझ गया क्या बोल रहा है? गाना भी शुद्ध मन से गा रहा है, समझे ढंग से लफंपा शो, वो टट्टो बन जाता है। वो मने ढंग से कर रहे हैं, मन में पूरा कुटिलता है चोर करने की और लोगों को, वो फिर उल्टा हो जाता है। तो कहां आ गया सत्संग का? मन पर आ गया ना। मन है, मन सेम है, इसलिए नंगबा बोलते हैं हम लोग। नंगबा से नंग की सेम, छिपा माइन, नंगबा सम को सुधारो बोलते हैं भगवान बुद्ध जी। बॉडी को सुधारना अच्छा होगा तो संगे चंदन में राजमहल में बैठ करके ताज लगा के राजा का पुत्र बन देता ना। तो उन्होंने मन सुधारने के लिए क्या क्या नहीं किया? तो मन सुधारने, तो जो कुछ भी गंजन करना है तो उसके लिए पहले ग्यू होने की आवश्यकता है। ग्यू भी शुद्ध होना चाहिए। अगर ग्यू अलग हो जाए तो यहाँ कह रहे हैं कि युन शिंतो रिंगो सिंह ने जहां दुबे देवो थोपा में तो फिरना राले होमा शेवा सिंह होस जू थदा माजे पाले चंग देवो जुआ में ते सबन लासोपा घाया रुआ शिक में ना न्यूगो लासोपा देवो मिजुंग विचिरो देता वे ना देवो दे तो पे जो तंचेन मनर वादं थदा लाते पर जाओ बोल रहे हैं। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? साथ साथ आपको लुंग भी मिल जाएगा, तो इसमें यह है बोल के ये भी हो जाएगा, फिर वो गिबा आ जाएगा ना। तो इसलिए तो ये कह रहे हैं कि गौन जमन करने के लिए जो है सम तुलसी करना बहुत जरूरी है ना। संजय चुमदिन में कह रहे हैं कि है ना, हिंसा मत करो, है किसी को काटो मारो मत, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो,
हैं, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, मीट मत खाओ, इससे समझन को नफा हो जाता है, ये मत करो बोले ना, और नहीं करने का है। नहीं करोगे तो मने ढंग से करो या ना ढंग से करो, छुपा हो गया, है ना। मने ढंग से कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, शराब भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, रंडीबाजी भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, सब कुछ करेगा, तो उस मने का क्या मतलब है भाई। जब आप समझो यार, आप तो इंसान हो, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के युग में ना, अब लोगों ने फैशन बना दिया, मने ढंग से करने मात्र से छुस हो गया, समझ रहे हैं, गलत है। मने के अंदर दम है, जिन्नत है, सब कुछ है, लेकिन आप कौन हो, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है और मुंह से क्या बज रहे हो, तो उल्टा हो गया ना, सेम गवाह मने गवाह, ये नहीं मिल रहा है ना। मने के साथ मने का सेम होना चाहिए, डोमा के साथ डोमा का सेम होना चाहिए, संगी के साथ संगी का सेम होना चाहिए, मोलम के साथ मोलम का सेम होना चाहिए, समझ गया ना। आप चावल खा रहे तो चावल खा रहा है, चावल खा रहा है तो आप मीट थोड़ी खा रहा है यार, समझ गया ना। ये सब मिलना चाहिए, तो ये अंदर और बाहर मिलने, इसको कह रहे हैं। अगर संघर्ष में कह रहे हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, अब चोरी कर रहे हो तो गलत हो गया ना, सीधा सीधा नहीं है। तो बिना कारण से, अगर बिना कारण या गलत कारण से आप छस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई डेबू होता नहीं है। जैसे कि बकरा के सींग से दूध चाहिए बोल के सींग से दूध निकालो तो सींग से दूध निकलेगा, यहाँ बोलते हैं, यहाँ दे रहे थे राले होमा जुआ जिंदो से राचो में होमा जुआ, राचो से दूध आएगा कभी, लंदन भी खेरंग गया तो राचो पर वरना खेरंग दूध आएगा नहीं, ऐसा ही बात हो जाता है, बोलता है तो संभल के छस करना चाहिए, बोलते हैं, समझ के राले होमा जुआ जिंदो से। इसलिए अब झींगा में आप फसल चाहिए तो उसका बीज चाहिए होता है, बीज है ही नहीं है, सिर्फ खेत है, उसके ऊपर पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है, कुछ उगेगा खेत से, उगेगा नहीं ना, तो ऐसा छस नहीं करना चाहिए बोल रहे। यहाँ बता रहे हैं घुमरिन के अंदर है ना, छस का बात को सुनो अच्छी तरह से, आज तक नहीं सुना हो तो सुनो यहाँ से, समझ गया ना, आप लोग सुनते जाओ। ये कमलशिला जी कह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा विद्वान है और क्या साधक भी है। हाँ, टेबो थमचे चंपा नीचे जो चंद देदा कंग जेना, अब बता रहे ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि थमची खेम्पा संगस का गोपंग प्राप्त करने के लिए ग्यू क्या है, केन क्या है, ग्यू और केन क्या है। ग्यू और केन से मतलब क्या बताया, कारण और प्रत्यय क्या है। कारण और प्रत्यय में क्या मतलब होता है पता है, जैसा हम लोग खेत में ने जो चंपा बनाने वाला ने बोलते हैं ना आप लोग भी, जो नंगा जो है वो हमको चाहिए, तो पहले बीज होना जरूरी है ना, वो बीज जो है सबन है, ग्यू है। अब केन क्या है, उस ने को सबन को चुपसे के ऊपर रखेगा तो कभी उगेगा नहीं ना, उसके लिए केन चाहिए। केन क्या चाहिए, खेत चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, समझ गए ना। खेत खाद और पानी केन है, उसको प्रत्यय कहते हैं। और जो मेन बीज जो है वो ग्यू है, कारण है। तो इसी तरह जैसा एक फसल को उगाने के लिए पहले बीज चाहिए, फिर खेत चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए। अब छठ का निर्णय करने के लिए बीज क्या है और खाद और पानी और खेत क्या है, अब यहां से नीचे बता रहे हैं उस तरह क्या होना चाहिए, यहां बता रहे हैं। मेपास दाताबु मिलोंगन तावे देदा टेम्परा मिनु मोची honchang chomden deji ngombra zobra samje ne dulja namla jike shepa deshindu धागे चमदेन देजी का नीचे शेदो से। अब कमला शिला जी कह रहे हैं, आचार्य कमला शिला जी, मैं तो एक मूर्ख आदमी बोलते हैं, मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं किया। हर एक जो विद्वान आदमी होता है वो कभी अपने आप को विद्वान नहीं कहता है, समझ गया ना। जो विद्वान आदमी होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, साधक होता है, वो कभी अपने आप प्रशंसा कभी नहीं करेगा। यहाँ वही हाल आचार्य कमलाशिला जी कह रहे हैं कि मैं तो एक अंधा की तरह हूं, बोलता है कहाँ भगवान बुद्ध जी का प्रवचन इतना गहरा और इतना विस्तृत, मैं मेरे समझ से बाहर है, बोलता है। फिर भी ये जो भगवान बुद्ध जी के प्रवचन को अध्ययन करने का मुझे मौका मिला, उस भगवान बुद्ध के प्रवचन त्रिपिटक के अंदर जैसे घुमरिन के बारे में बताया गया है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो यहाँ गलती कुछ भी नहीं है, सब सही है, आप लोग ध्यान देना बोल रहे हैं, समझ गए ना। चुंबन देजी देर का चौपा संवेदा को उन्होंने एक कोटेशन ले लिया, एक संगेस का कंजूर से त्रिपिटक से, वहां से एक संगेस का सुंग ले लिया। चुंबन देजी देर का चौपा संवेदा को थमची चिंबे ईशे देनी निंजित वाले जुआ इन। देखिए एक जगह भगवान बुद्ध जी छंगना दुर्जे जी को प्रवचन कर रहे हैं। छंगना दुर्जे पता है, वज्रपानी छंगना दुर्जे वज्रपानी जी को प्रवचन करने हैं, संवेदको बोलते हैं, हे गुह्यपति संवेदको
थमची चिंपा जो भगवान बुद्ध जी का बुद्ध का जो ज्ञान जो है उसका जड़ क्या है तुझे मालूम है? कह रहे तो कह रहे हैं भगवान जी उसका जड़ जो है करुणा है, दया है, कंपैशन है, निंजे है बोल रहे हैं। तो निंजे जो है संगस के टेम्पा रिम्पोचे का जड़ है। जब आपके अंदर दया की भावना नहीं होगा तो मने का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी कैंपे पढ़ते हैं उसका कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके मन में दया तो है नहीं है, आपका मन तो सुखा हुआ है, वो मन में क्या है? कुछ भी नहीं है। समझ गया ना? दया की भावना। The Buddhism is why it is great. The Buddhism always taught you about great compassion and wisdom, isn't it? So that's why ये जो दया की भावना जो भगवान बुद्ध जी ने कहा है, इस तरह से किसी माई का लाल ने कहीं कहा ही नहीं। बल्कि हालांकि वो लोग दया दया बोल के प्रयोग करते हैं, ये दया कोई दूसरी चीज है, ये करुणा अनकंडीशनल। आज जो कहते होंगे तो यहां से ही लेके वो कहने की कोशिश करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कहा कभी नहीं बताएंगे, जैसा कि बाबा लोग खुद ही बना रहे हैं, जैसा ऐसा कहते हैं। क्या हुआ फिर? कारण अहंकारी लोग हैं। समझ गया ना? तो ये तो क्या हुआ? जड़ यमलिन का सबसे बड़ी जड़ क्या हुआ? निंजे होना चाहिए। निंजे छिंबो गे छिंबो निंजे होना चाहिए। जंगचू की सम की झूले जुआइनो निंजे के बाद जंगचू का सम का जो कारण है, जंगचू का सम जो है संगस का ग्यू है बोलते हैं। हर एक इंसान जो संगस बनता है उसका बीज जो है जंगचू का सम है। जंगचू का सम बोधिचिता। जंगचू का सम क्या है? नीचे आएगा धीरे धीरे, आप लोग सिर्फ सुनते जाइए। थप चिथर चिंपाइनो। थप और शरप दो तरह क्या होता है? शरप होता है निंजे छिंपो, शरप होता है तोंगपन्नी, मतलब छे मिताकपा तोंगपन्नी जो होने का ज्ञान जो शरप बोलते हैं। निंजे का मतलब दया की भावना। समझ गए? दया की भावना को थप कहते हैं। मेथड पार्ट ऑफ बुद्धिज्म, method part of the Buddhist practice is the the practicing upon compassion. Understand? The wisdom part of Buddhism is understanding of emptiness and impermanence in perfect way. Yeah. तो ये होना चाहिए। जे जुंगोस देता बेना थमचे चिंपा नी थोबरा दोपे निंजे दांग जांचू चिसम थक सुंपो देदा लाला पर जाओ। तो इसलिए कह रहे हैं हे छन्ना दुर्जे, जो कोई व्यक्ति संजस का छुस का नमन करना चाहता है तो उसके अंदर सबसे पहले दया की भावना होनी चाहिए। दया के भावना के बाद जंगचुक सेम का भावना होना चाहिए। जब जंगचुक सेम और दया की भावना पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो मेथड बन जाता है, थप उपाय बन जाता है, थपलम थप्स आ जाता है। इसको सबसे पहले गोम नमन में लाना चाहिए बोलते हैं। गोम नमन में लाना चाहिए। कैसा करना है नीचे बता रहे। निंजी चो ना जंगचुक सेम्पा नम सेमचन थमचे मंब्रा दंपे छिर नेप्रा दमछावरा जुर्रो से। सही में अगर दया की भावना आ जाता है इंसान के अंदर, कहते हैं सही में निंजे की भावना आ जाता है तो जंगचुक का सेम भी आ जाता है अंदर। जंगचुक मतलब संगस की गोफंग, सेम मतलब मन। वो मन जिस मन से संगस का गोफंग मिलता है वो होता है जंगचुक का सेम। समझ के आता है? वो मन वो सेम जिस सेम से, जिस माइंड से, जिस मन से बुद्धता प्राप्त होती है उसको बोधिचित्त कहते हैं। और बोधिचित्त जो है लोक कल्याण की भावना से भरा हुआ होता है। उसमें अहंकार नाम की चीज नहीं होती है, द्वेष और काम की चीज तो कहां होगा? होगा ही नहीं है। सम जंगो लक्षम दंगदंबा निंजे दंगदंबा संगे शगत हुआ कि थुप नंबर मितो पे निंजे। समझ गया ना? तो ये होता है बोलते हैं। इसीलिए हम लोग भी अगर बुद्धत्व के संगस के गोफंग प्राप्त करने के इच्छित हैं तो सबसे पहले यह प्रतिज्ञा करना चाहिए कि मुझ के अंदर जंगचुक का सेम उत्पन्न हो। केवल इस भावना से नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिकल रूप में लाना पड़ेगा। जहां गुस्से की भावना आए तो तुरंत गुस्सा को छोड़ करके प्रेम की भावना लाओ और फिर माइंड जो ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गया ना? तो यह बता रहे थे ने तांगी लतावासा ने शिंतु जाकाशिंग जुन मिचेला युनरिंग पुरो जुपे सोनम दा इशी के छोला विपरा जुप धैर्य जुमने सिंह सोनम दा इशी की छो योंसु जोबरा जुपोस। इस तरह की दया का भावना आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लगातार पूरा 24 घंटा मुश्किल है। 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ऐसा करके थोड़ा दया की भावना सिमचेन थमचे देवातम देवी की पूरा जो है प्राणी जो है पूरा सुखी हो बोल के इच्छा के साथ, शुभ मन के साथ ओम मनि पे में ओम मनि पे में ओम मनि। मन में क्या है? सभी प्राणी सुखी हो ओम मनि पे में ओम मनि पे। किसी प्राणी में दुखी ना आए ओम मनि पे में ओम मनि पे। फिर मने बन जाता है, फिर निंजे आ जाता है और निंजे का गम बन जाता है। तो इस तरह का भावना होना चाहिए होता है। उसके साथ शरत का भावना साथ में आ जाए
इन दो पंख, निंजे का पंख और शरफ का पंख, ये दो पंख जो है संगेश की गोपंख प्राप्त करने के लिए वहां पर आपको उड़ा के ले जाएगा। कौन उड़ा रहा है? खुद उड़ा रहा है। कैसा उड़ा रहा है? आपका मन साफ है, आपके मन में दया है, आपके मन में प्रज्ञा है, विजडम है। पंख किसने बनाया? आपने खुद ने बनाया। कैसा बनाया? भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुना, मन साफ हो गया, पवित्र हो गया, तो आप उड़ रहे हैं, कोई दुख नहीं है, पूरा सुख ही सुख, शांति शांति। तो ये है बोल रहे संगेश का व्यू, समझ गया ना? तो ये है देवेना थमची चंपा नीची चावानी निंजी खोना इन पे देने थमर खोना गोमपर जाओ। तो इसलिए कहते हैं सबसे पहले संगेश का जू जो है, संगेश बनने का जो मेन कारण जो सबन जैसा जो है दया की भावना होता है, बोलते हैं। इसीलिए सबसे पहले दयावान होना सीखो बोल रहे, दयावान होना सीखो। अब हम लोग नंबा संजय पर बोलते हैं ना मुंह से, नंबा संजय पर मुंह से बोलते हैं, अच्छी बात है। नंबा संजय पर बहुत सा चिंपो है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही प्रेशियस है। बुद्धिज्म होना कोई आसान काम नहीं है, इम्पॉसिबल जैसा है। लेकिन असली बुद्धिज्म होना तो बहुत ही मुश्किल है ना। बुद्धिज्म मतलब बुद्धिस्ट में यूं कह रहा, असली बुद्धिज्म भावना से जुड़ा होना चाहिए। अपना मन भावना से जुड़ गया तो फिर आप निंजे का क्या कहते हैं, गम कर रहे हैं। निंजे का गमजा होना चाहिए, गम होना चाहिए, दया की भावना होना चाहिए। 24 घंटे मुश्किल है। कई व्यक्ति जो है गम कर सकता है, नमन कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो पूर्व जन्म से कुछ उसने घेवा साक्षी किया होता है, पूर्व जन्म से उसने कुछ धर्म का संचय किया होता है। उस संचय करने से जो है, कभी कभी समाज में आप देखते होते हैं, अपने घर के परिवार के अंदर ही देखते होते हैं, 3 भाई है, तीनों भाई का अलग कैरेक्टर है, अलग आचरण है, अलग आदत है। कोई इतना सज्जन सिंपल, ना कोई उसको मीट से लगाव है, ना शराब से लगाव है, ना गाली गलौज से, इतना सिंपल, इतना नेचुरल, इतना ईमानदार, इतना सरल, इतना सहज। क्यों? दूसरा भाई सब कुछ करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, शराब भी पीता है, माता पिता को गाली भी देता है। ये एक में बच्चे क्यों आया ये फर्क? जांच करो क्यों आया। जो सरल सहज और ईमानदार और अच्छा है, उसने पूर्व जन्म से संस्कार बना के रखा है। उसके अंदर शांति की भावना है, ईमानदारी की भावना है, मानवता की भावना। एक दूसरा जो आया कहीं से गलत काम किया होगा, उस भावना को अभी तक छोड़ा नहीं, इसीलिए अभी तक भी जो है उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, मूर्खता है ना। ये क्यों होता है? इसीलिए ये जो निंजे दया बनने की जो भावना जो भी है, किसी में तुरंत आ जाता है, तुरंत पहचान लेता है क्या प्रवचन हो रहा है, क्या हो रहा है, मन में तुरंत छू जाता है, उसमें शीतलता आ जाती है, उसका भाव उसके अंदर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार है। सेंगोमा की पक्षा बोलते हैं इसको। पूर्व किसी में जितना भी उसको बोलो 1000 बार बोलो, फिर भी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए कोई खाली आवाज है। क्यों? संस्कार ही नहीं है तो कैसे पता लगेगा? इसीलिए ले जो है हर एक व्यक्ति में इंडिविजुअल है, अपना अपना ले है, समझ गया ना। असली धर्मात्मा होना और ना होना खुद पर निर्भर करता है। और दूसरी बात, वहां ड्रेस से कोई मतलब नहीं है, मन से मतलब है। क्यों नहीं? भिक्षु गेलोंग और गेलोंग माता छंपो है, क्योंकि संघर्ष का लोमा है। लेकिन असली छस का जब बात आ जाता है तो मन की बात आ जाती है। हाँ बोसो, पता लग रहा है ना? पता लग रहा है? पता लग, इसको अपने मन में धारण करके देख लो। या गोमरिन पढ़ रहे हैं हम। छु यंग तब रदुपा दोले चंका चलते चमदिन दे जंचु संबे छु रब तो मंगो लाला पर मिजाओ हो। कहते हैं कि सबसे पहले धर्म को जानना है तो एक दूसरा सूत्र में कंजूर के अंदर, कंजूर त्रिपिटक के अंदर एक सूत्र है, उसको धर्म संग्रह सूत्र, धर्म संग्रह सूत्र, इसको छु यंग तब रदुपे दो बोलते हैं। उसमें से भगवान बुद्ध जी अपने चेले को कहते हैं कि चमदिन दे जंचु संबे छु रब तो, कहते हैं कि देखो मेरे शिष्यों, बहुत ज्यादा समझने और ज्यादा इंटेलेक्चुअल, ज्यादा बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले दया का भावना करो, यही तुमको आगे ले जाएगा। सबसे पहले निंजे के बारे में सोचो, निंजे की भावना मन में रखो, ज्यादा सीखने की आवश्यकता। निंजे की भावना मन में हो, छाप करो, कोरा करो, मन में जलाओ, है कैप्टो लगाओ, जो निंजे की भावना तो हो मन के अंदर, फिर जिल्लक वहां है। कहते हैं कि उसी के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है, भगवान बुद्ध जी का धर्म का राज है। मिजाओ चमदेंदे जंचु सुबे छुति रब्तु जोंगशिन रब्तु तोकरा जेना संजी जी छु थमजी दे लाखन तो 6 लाख सो होता है। अगर निंजे की भावना आपके मन अंदर है, भावना समझे थमजे पूरा प्राणियों की कल्याण के लिए,
पूरे प्राणियों के दुख को हटाने की भावना आपके अंदर हो, तो भगवान बुद्ध का धर्म आपके हथेली में बोलता है, आपके साथ है बोल रहे। बहुत आसान चीज है, लेकिन करके तो देखो। समझ गया? सुनने दवा 저 락텔도 치바 락소스 랑텔나마 요스 닝제기 검냠len 지고레스 닝제기 검냠len 지바에나 대리 상제기 치 냠len 포타 쳐바인데 대वाने 시드 बारदाना जो थे तेने दीदी रोको चाहिए। तब यहाँ हम शरीर छोड़ के जाएंगे, घर परिवार को तो कोई आसरा नहीं मिलेगा। घर परिवार तो सिर्फ इस शरीर के साथ है। जब यहाँ से शरीर छोड़ के चले जाओगे तो अकेला जाओगे, अकेला मन जाओगे, अपना मन जाएगा बारदों में। तो उस समय इस तरह के निंजे के भावना वगैरह शुद्ध चित्त बिगड़े हो तो वहां जिठों का लाभ वगैरह सब आपको सहायता करेगा, क्योंकि आपके अंदर निंजे की भावना है ना। संज्ञा के छुई का जिला इसके अंदर है ना, तो ये समझना चाहिए। छू चुप को बहुत लेना देता थे निंजे छंपो। हाँ, एक धर्म जो आप बार बार बता रहे हैं वो क्या कहते हैं, निंजे छंपो हो महाकरुणा, द ग्रेट कंपैशन। द ग्रेट कंपैशनेट माइंड इज द रियल रूट ऑफ बुद्ध। तो मेरे को ये पता लगा जो भी हम लोग ध्यान साधना करते हैं ना, सबसे पहले करुणा की भावना होना बहुत जरूरी है। विजडम वाला पार्ट अच्छा है। कई लोग पहले विजडम पार्ट से करते हैं ना, वो थोड़ा मिस हो जाता है। साधारण जन के लिए पहले करुणा वाला भावने से अगर नमन करे ना, फिर विजडम पार्ट आ जाए ना। देता थे निंजे छिंपो जे चुंगो निंजे छिंपो योंसो जंबा ना समझे चंदन दे नाम रंगी दोन फुंफुन चोका थादा ये चंग सेमचिंजी खम थतु पे बर्दो जुबरा दे दो। अगर आपके अंदर निंजे की भावना है, छत नमलन अच्छा करते हैं तो वो असली में जो है संगे चंदन दे जी का है ना, रंगदम फुंसुन सोपा। संगे चंदन दे की कु में रंगदम फुंसुन सोपा और जंदम फुंसुन सोपा वो क्या था ना। जंदम फुंसुन सोपा मतलब दूसरों के कल्याण के लिए पूरा जो भी कार्य करे दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, तो उससे संगे चंदन दे जी का टुकु और लोगों को दफंग मिलता है। टुकु निर्माणा का है, संभोग का है, उससे मिलता है। निंजे से छुकु जो बोलते हैं वो शरब की नमलन से मिलता है। तो इसलिए जंदन फुंसुम सोपा जो है ना, वो असली संजय चमदन का जड़ है। जंदन फुंसुम सोपा जो है निंजे करुणा से बनता है, तो निंजे का नमलन करना चाहिए। बोलते हैं यहाँ आपको क्या समझना है, छस नमले ये तो मैं आपको जिन्नत के लिए पढ़ रहा हूँ ना, तो असली क्या सोचना है, निंजे होना बहुत जरूरी है। ये बोलना मत, निंजे बहुत जरूरी है। समझ गया ना। था तो बजुबरा जितो निंजे जिंदो नियंग देपे डोंचे शिंतो शिवरा यांग जुबरा मिजेते सेमचन ना जिंग नियंग देपे डोंचे जीवा तेचाचे खंबा परवा जिंदो थारुंदो पंगे चंदन दे नामजे मिने पे नियंग देपे जोमी निंजे चंपो देनी हिनोस। अब निंजे चंपो क्या है, थेपा चंपो का लंगा है। थेपा चंपो क्या है, थेपा चंपो थेपा मेंपा और संगा दर्जे थोपा क्या है पता है। थेपा मेंपा बोलने से संघर्ष का छस है। थेपा मेंपा पैदल जाने जैसा है, अकेला पैदल जाने जैसा है। संघर्ष का गोपंग यहाँ से मंडी जितना हो तो यहाँ से अकेला एक आदमी पैदल जाने की तरह है। एक आदमी जा रहा है और कौन पहुंचेगा मंडी में, वो एक आदमी पहुंचेगा। मंडी पहुंचेगा जरूर, लेकिन धीरे चल रहा है। 1 घंटा में मंडी पहुंचेगा, 2 घंटा में मंडी पहुंचेगा, सारा दिन लगेगा, मंडी पहुंचेगा जरूर, लेकिन पैदल जा रहा है, अकेला जा रहा है। ये थेपा मेंबर का ऐसा विचार है। खैराबाद व्यू जा रहा है लेकिन पहुंचेगा मंडी। अब थेपा चंपा बाहर जाना है, वो ऐसा कि ट्रेन में जा रहा है जैसा है। ट्रेन में कितना आदमी जाता है, कई हजार आदमी जाता है ना। वो ट्रेन में जा रहा है तो मंडी उस आदमी के साथ 1000 आदमी के साथ पहुंच जाता है ना। इसलिए थेपा चंपो में अपने लिए नहीं, सेमचेन थमचे माँ जिंदू थोंग में सभी सेमचेन थमचे जो जितना भी संसार का जो प्राणी है उसको अपनी माँ के समान मान करके उन माँ सबको संसार से थपा देने का विचार के साथ जो है गैचर करना है, नमलन करना है। ट्रेन की तरह है, संगा परिचय थेपा हवाई जहाज की तरह है। फिर हवाई जहाज में बहुत आदमी उड़ेगा ना, पैदल जाएगा तो बहुत देर लगेगा, पहुंचेगा जरूर। ट्रेन में जाकर पहुंचेगा जरूर, पैदल से कई गुना जल्दी। संगा परिचय थेपा का नमन करके नमडू से जाने जैसा है। नमडू बहुत जल्दी पहुंचेगा ना, और नमडू मतलब जहाज, तो बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। तो ये उदाहरण दिया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो ये थेपा चंपो का वो है ना, ये जो है गोम का नमलन जो है, ये सिर्फ मैं डाचंपा हो जाऊं बल्कि करेगा तो फिर थोड़ा अहंकार टाइप का हो जाएगा, प्राइड हो जाएगा, मैं अकेला आ सकती है। सभी लोगों को जान में जगह तो उसमें दया की भावना ज्यादा है। इस दया की भावना के द्वारा ही संगे शक्यत हुआ जी संगे हो गए थे। संगे शक्यत हुआ जी 500 बार इंसान के जन्म में आए तो कई लोगों को साथ लेकर चले, जैसे कुछ सब लोगों के साथ। इसीलिए थेपा चंपो वहां से आ गया। थेपा चंपो किसी ने नहीं बनाया, थेपा चंपो मतलब माया जाना किसी ने नहीं बनाया, संगेश का छस का चिन्ह है। तो
आज तो दुर्भाग्य है ना, कलयुग है, हम लोग तो अपने परिवार के साथ जाने में भी राजी नहीं है आजकल, तो है ना। क्या होता है घर गृहस्थी में, बुरा हाल है। तो बेटा जा रहा है उत्तर दिशा में, बेटी जा रहा है दक्षिण दिशा में, पिता जा रहा है कहीं उठा, वहां कोई ना माता पिता का बात सुनता है। बच्चे लोग बिगाड़ दिया, खुद ने बिगाड़ दिया होता है, बिगाड़ दिया। निंजे तो सिखाया ना, कौन सिखाता है? निंजे सिखाता है घर परिवार में, निंजे करना चाहिए, छस नमलिंग करना, कौन है? छस से सब भाग रहे हैं। किन्नौर वगैरह में बुरा हाल है, इसलिए कभी कभी किन्नौर में जाने का मन भी नहीं करता है। क्यों जाए किन्नौर में? अच्छा वहां है, अंग्रेज लोग छस समझ रहे हैं, वहां जाके अंग्रेजों का कल्याण करिए तो समझ करके छस नमलिंग नहीं करता है। समझ गए मैं क्या रहा हूं? मैं किन्नौर को बहुत पसंद करता हूं, मैं किन्नौर का हूं, जंगी का हूं। हालांकि समझन थमचे मेरा माँ के समान है, जब इस तुम्बा पर चलेगा तो समझन थमचे माँ के समान है ना, इसलिए कोई रंग रूप भेद नहीं है। लेकिन इस शरीर का संबंध किन्नौर से है, जंगी गांव से है, तो किन्नौर में क्यों नहीं जाना? अपनी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, समझे ना लोग। तब अब वहां जाएगा, ये तो रिम्बोचे नहीं है जी, ये तो खेम्बो है जी, क्या है अजीब 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 बात चलता होगा, मैं तो पता नहीं। अब चाहिए लोगों को रिम्बोचे। रिम्बोचे कौन होता है? 2 पैर वाला होता है, 1 सिर वाला होता है, ऐसा ही होगा? कैसा होगा? कोई बहुत बड़ा सोने का पॉलिश लगा के, बहुत ऐसा तो होता नहीं है ना। रिम्बोचे जी या तो नया गांव मारते हैं, वो भी तो गुजर ही जाते हैं। रिम्बोचे जी ना तो बीमार ना होता है, उनको भी तो डायरिया होता है, मच्छर काटे तो उनको भी सूजन होता है। समझ गया ना? यहाँ पर रिम्बोचे है या नहीं, इससे मतलब नहीं है धर्म में। असलियत में धर्म में मतलब है कौन अच्छा ज्ञान दे सके और कौन आपको सुधार सके, ये बहुत बड़ी चीज है। भगवान बुद्ध जी ने बताया है। समझ गए ना? रिम्बोचे तो अचंभव है, क्यों नहीं है? रिम्बोचे है। कहने का मतलब धर्म जो है अपने मन से जुड़ा होना चाहिए। जो व्यक्ति आपके मन के अंदर अंधकार को टॉर्च जलाने जैसा लाइट लगा देगा, तो उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? बताओ। धर्म जो है क्या है? इस जिंदगी के फसल अच्छा आने के लिए, पैसा अच्छा आने के लिए, छम अच्छा आने के लिए, मतलब व्यापार अच्छा हो, घर में धन संपत्ति अच्छा हो, वो धर्म थोड़ी है। अगर घर में सोना चांदी अच्छा हो, धन संपत्ति अच्छा हो, घर में खुशहाली है, तो सबने चुम्बन में रात महल क्यों छोड़ा है? समझ गए ना? ये बारीक सारी बातें है। जिसको जानेगा ना फिर आपको आनंद आएगा। अमीर होना बहुत अच्छी बात है, पूरा पहले जन्म में आपने अच्छा कर्म किया होगा, अभी अमीर बन गए हो। समझ गए ना? अमीर बन के आपके अंदर कंजूसी आए तो आप सबसे बड़े गरीब हो। मरने के बाद दोबारा अमीर बनने वाला नहीं हो, हिदायत बन जाओगे। कौन बना रहा है? हिदायत खुद बन रहा है। सोचा कि मैं तो अमीर हूं, मेरा कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, जैसा कि मेरा रुपया पैसा धन दौलत कभी खत्म हो गया नहीं, और भूल गया। मरना ही भूल जाता है आदमी, बाप रे बाप, मरना भूल जाता है। मर गया तो अब डॉक्टर कहता है यार मरने का समय आ गया ना, डॉक्टर कहता है डॉक्टर जी मुझे बचा लीजिए, आपको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। कहां करोड़ रुपए? वहां तो कुछ भी फायदा है ही नहीं है। आपको 4th स्टेज का कैंसर हो गया है, 10 दिन के बाद डॉक्टर जी 10 दिन तो कम से कम 2 साल तक आगे बढ़ाएगा, आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। 1 करोड़ रुपए काम आएगा? जब जाने का समय आ ही गया तो आपका रुपया पैसा क्या काम करेगा? आपका यह शरीर ही काम नहीं कर रहा है तो रुपया पैसा भूल जाओ। रुपया पैसा तो इस जिंदगी के लिए, इस शरीर के लिए सिर्फ एक साधन है, खाना जुटाने का, कपड़े जुटाने का, घर बार जुटाने का, गाड़ी जुटाने का। लेकिन गाड़ी में तो एक्सीडेंट हो जाता है ना, आदमी तो दिल फट जाता है ना, शरीर जल जाता है ना, हड्डी तक जल जाता है ना, कोयला बन जाता है ना। सतलुज नदी में फेंक दिया और 10-11 दिन के बाद भूल जाते हो ना, फिर दोबारा आ गया कभी भी नहीं मरूंगा जैसा। इसी को तो समझा रहे हैं भगवान बुद्ध जी। मरना है, मन को सुधारो, पवित्र करो, दया की भावना। मरने के बाद भी चित्त अच्छा होगा, जो बर्दों में होता है ना, बर्दों मरने के बाद मन तो मरता नहीं है, अनित्य है लेकिन मरता नहीं है। वो आगे का जो मन का जो संस्कार जो अच्छे बन के फिर दोबारा जिंदगी आना होगा तो शुद्ध जिंदगी आ गया ना, पवित्र जिंदगी आ जाता है ना। तो अमीर बन करके दानी होना सबसे बड़ा कार्य है। अमीर बन करके दानी होना, चिंबा देने वाला, अच्छा चैरिटी करे, वो सबसे पवित्र व्यक्ति है। अमीर होकर के कंजूस करना सबसे बड़ा गरीब आदमी है। वो अपने परिवार वालों को खिला नहीं सकता है, तो लोगों को क्या देगा? समझ गए ना? ये संघर्ष ने बताया। गरीब बन करके ज्ञान की भावना रखना बहुत बड़ा अमीर है। गरीब है लेकिन अंदर ज्ञान का भंडार है, अमीर है। समझ गया ना? ये बहुत ये असली चीज ये चीज है, लेकिन आज की दुनिया में असली चीज को कोई समझना ही नहीं चाहता है। अंधे हो गए हम लोग। 9 बजे ज्यादा अंधा जिसमें बीमार। समझ गया ना?
तो छोस को ऐसा सीखना चाहिए। मैं नहीं बता रहा हूं, संघर्ष का छोस का निचोड़ जो ऐसा है, संघर्ष का छोस का जड़ जो ऐसा है, समझ गया ना। ये दया का भावना भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं ना। तेला लिंजे कोंबे रिंबा दे दांगबो जुपा ना तमते जुबरा जाओ थमर रेजी तंगम कोंबे समझन थम चिलो जेसु जगबोदों कोंठवा साके न्योंबे समनी डुबरा जाओ। ये बहुत अच्छी चीज है। ये बता क्या रहे हैं, तंगम गुमशी करना चाहिए। तंगम गुमशी करना, तंगम क्या होता है? समझन थम जी न्यारिंग छकदंग में बे डालवे तंगम छेंबोला नेबरा जाओ। समझन थम जी न्यारिंग छकदंग में जी नेवा मतलब मेरा रिश्ता है, मेरा रिश्ता है उनके बहुत जिम्बा करना, आसक्ति करना, अटैचमेंट होना। रिंगवा मतलब मेरा दुश्मन है, इससे तो बात ही नहीं करना है, वो छोड़ दो यार, उससे बात ही नहीं करना है, ये है वो है वो है। ये दो चीजें जो है इसको कहते हैं संसार। ये मेरा है, मैं इसे नहीं मानता, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है। इस तरह की भावना जब आ जाए ना, बहुत बड़ा संसार है। जब ये दो चीजें खत्म हो जाए ना, बॉर्डर खत्म हो जाए, सब बराबर दिखाई देगा ना, वो छोस है, वो धर्म है। तो कहते हैं कि तंगम गुमशी करना चाहिए। अब तंगम गुमशी कैसे करना चाहिए? मन में सोचना चाहिए आखिर क्या दुश्मन है, क्या मित्र है। लास्ट में जब हम जाएंगे तो अकेला जाना है, जब आए थे तो अकेला आया है। ये 50 साल 60 साल 80 साल 100 साल के लिए ये जिंदगी में हम हैं। अब इसमें भी सुख शांति से नहीं बैठ करके लड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, भाई भाई को काट रहे हैं, बाप माँ बेटे को नहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, बेटे बाप माँ से दुश्मनी ले रहे है। क्या चीज है ऐसा समझना चाहिए, होश में समझना चाहिए कि संगे चमनिंदे क्या थे और क्या बताना चाहते हैं। तो तंगम सेम नंगोला ढायंग मन्यार डोबोयंग मन्यार। ऑफकोर्स मतलब क्यों नहीं, पिता पिता है, माता माता है, भाई भाई है, बहन बहन है, बहू बहू है, सब कुछ है जैसे आपका दूसरे का भी है, सबका है। तो क्यों दुश्मनी लेना है, क्यों ज्यादा मित्र की भावना में रखना है? सबके साथ एक दृष्टि रखो तो आराम से जियो यार। अपने घर बाहर को फूल का बगीचा बनाओ, कांटे का शहर क्यों बना रहे हो? किसने बनाया? तुम खुद बना रहे हो यार, समझा करो इस चीज को। तो तंगम उपेक्षा की भावना, जितना उपेक्षा की भावना रखोगे मन में, मन सुधर जाएगा, साफ हो जाएगा, कुशल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जितना मन को हिलाओ, ये तो मेरा दुश्मन है, बात नहीं करने का, ये मेरे मित्र हर एक दिन पार्टी कर रहा है, शराब पी रहा है, डांस कर रहा है, अनाप शनाप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वही आपको उथल पुथल बना देता है, वो आप डिसबैलेंस हो जाते हो। तो उसी में आपको ज्यादा दुखी होगा, दुख होगा। जब आप अपने चित्त को बैलेंस में रखना सीख लिया, डा भी नहीं है, न्यन भी नहीं है, सब बराबर की भावना रखा, मन में पवित्रता आया, अपने काम से काम, मुस्कुराते हुए चला, मुस्कुराते हुए बात किया सबसे, तो कितना आनंद आएगा। कहते हैं कि तंगम गुमशी करना चाहिए। तो इतना दम है हमारे बुद्धिस्ट प्रेयर में, नांगबा संजेपा के जो शब्द है ना, इसमें इतना दम है। कहते हैं यार समझे समझे देवादम, हर एक इंसान जो है सुखी हो, सुखी के जड़ से हमेशा जुड़ा रहे, कोई भी प्राणी दुखी ना हो, दुखी का जड़ सूख जाए। समझे समझे धुआं धुआं में पे देवादम। अब उसके बाद दुख कभी भी ना आ जाए, जो आंतरिक सहज सुख है वो बना रहे। देवादम पदम में लेरिंग छकदम में भी बिना दुश्मनी और बिना मित्रता के भाव से एकदम निर्मल स्वच्छ जल की तरह मन बना रहे, पवित्र बना रहे। इस पर ध्यान दो बोल रहे हैं, समझ गए ना। तो ये भावना होना चाहिए, फिर कितना मजा आता है, देखो कितना जिल्लत आता है। एक बात मैं आप लोग को पूछ रहा हूं, कोरा करते हो, छक करते हो, मनी लगाता हो, गप्पे मारते हुए कभी मत करना। गप्पे हो तो गप्पे ही मारो यार, क्यों झूठ मूठ कर मनी 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 कर रहे हो? गप्पे तो गप्पे लगाओ, मनी करना है तो शांत भाव से मनी लगाओ। गप्पे भी लगा रहे, माला हिल रहा है, यहाँ जीप हिल रहा है मुंह में, तो कबीर जी वाला दुहा जाता है क्या है ना, माला तो फिरे कर में, जीप फिरे मुख में, मनुआ तो फिरे चाऊ दिसी, ये तो सुमिरन नहीं, ये सुमिरन नहीं होता है। बेशक 5 मिनट बने जपो तो शुद्ध भाव से करो ना, जो भाव यहाँ है तंगम वाला भाव से बने जपो। गप्पे मारते हुए मने मुड़ाना, ये पता नहीं कहां से परंपरा है, ये परंपरा नहीं था, तिब्बत में भी नहीं था, ये बाद में मोमो खाते खाते हो गया ये परंपरा। समझ गए ना। तो इसलिए जो इसमें थोड़ा ध्यान दिया कर। आगो सो समझे थमजे देवानी दो दुवानी मिदोला थोमा में पाचिंजे खुरबा ना समझे लेन जरता की न्यंदु मजुबा देदा खाया में तो नंदु योंसु समशिन देला जेदा चिसी योना लाला नि जेसु छा लाला नि खोंठोरा जुरबे देता वेना दाकी समझे थम चला सम यंबा नि तु जाओ यंदु देतरा हिला
जाजिंग परमेश्वर ने समझे जाशे तन ढाला yang सेम न्योंपा नीतु गोमो पता लग रहा है ना अपर किन्नौर के लोग को पता लग रहा होगा है ना तो इसलिए जो है ना तो अपने मित्र के प्रति ज्यादा जिम्बा और छकवा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए दुश्मन के प्रति जो है क्रोध भाव नहीं होना चाहिए थोड़ा थोड़ा आता है आ गया कोई बात नहीं तुरंत संभाल लो यार ये क्या है फालतू की चीज है भूल जाओ यार भूल जाना सबसे अच्छी बड़ी चीज है भूल जाना सबसे बड़ा चीज है अगर कोई आपके घर में अनहोनी घट जाता है जवान कोई गुजर जाता है भूल जाओ क्योंकि वापस आने वाला तो है नहीं है भूल जाओ तो मेरे साथ ऐसा तो कई लोगों का ऐसा होता है सिर्फ प्रार्थना करो उस आत्मा को शांति मिले सुखी मिले ये दम है ये संगे चुमने के झिलक का तरीका है समझ गया ना तो ये सीखो तो जाशे तंडाला सिंपा जाशे मतलब अपना रिश्तेदार जहां मतलब दुश्मन सिंपा नंबर नीतु को मोह बोलते हैं एक तरह से समझो बोल रहे हैं क्योंकि वो भी दुख नहीं चाहता है आप भी दुख नहीं चाहता है आपको सुखी चाहिए उसको भी सुखी चाहिए पता नहीं बीच में क्या कैंठेसी क्या कभी कोई छोटा सा चीज होता है उसको हम लोग पहाड़ की तरह बना देते हैं किसने बनाया हमने बनाया अगर वहीं भूल जाता तो वो पहाड़ वहीं पर खत्म हो जाता समतल नहीं रहता शुद्ध रहता पवित्र नहीं रहता समझ गया ना वो ठंडा चले तेने समझन हम चला सेम नंबर निदु गमने जंबा गोमो बोलते हैं सेम को जंबो करके जंबा गोमो जंबा क्या है समझन हम जे देवादम देवे युदम टेम्परेचर जी वो जंबा है कोई सब सुखी हो सब सुखी के जड़ से जुड़ा रहे ये जंबा है चंपा को इंग्लिश में लविंग कैंडल्स कहते हैं संस्कृत में मैत्री कहते हैं पाली में मेत्ता कहते हैं समझ गया ना ये सब संगेश का झलक का शब्द है Jampechi semche ju lente sher yongke sashi shindu jela ningje sabantam ne dhela to shindu yongsu jebra jiro देने semche ju jampe komne ningje गबरा जाओ जब आपके अंदर समझे थमचे देवादन देवे जोदन देवराजी सब कले लोगों के लिए सुखी की भावना आ जाए तो उसके पास दया को जोड़ दो करुणा को जोड़ दो करुणा क्या जाना कोई भी दुखी ना हो सुखी हो भी तो दुखी नहीं हो ना कोई भी दुखी ना हो ये निंजे है करुणा है सब सुखी हो ये मैत्री है जंबा है लविंग कैंडल ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और बहुत बड़ा गुण है इसके अंदर और हर एक साधु संत महर्षि अगर सही ढंग से महर्षि हो सही ढंग से बोधिसत्व जंगचुक सिंपा हो तो ये भावना निश्चित रूप से होता है उनके अंदर इसलिए लोक कल्याण में वो जुड़े रहते हैं तो इस पर ध्यान देना कह रहे निंजे देवी समझन दुंगल थमचे दुंगल देदंग ढलवर दोपे नंबा हिल्ला खमसुन बे समझन थमचे नी दुंगल नी नंबा सुन चिरिपा शितु दुंगल वादा हिंबे दे चेर समझन थमचे ला दे गोंबरा जाके तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं सभी लोग सभी प्राणी जो है दुख से दूर हो इस तरह से भावना दया है क्योंकि तीन लोग है ये दोखम है जुखम है जुमिकम काम लोग रूप लोग अरूप लोग ये तीनों जो है खमसुन खुरवा दुख के चपेट में फंसा हुआ है ये सभी प्राणी सुखी चाहते हैं कोई दुखी नहीं चाहते हैं आप भी सुखी चाहते हो दूसरे भी सुखी चाहते हो सुख की भावना को मन में धारण करके दुख को हटाने की भावना हमेशा जुड़ा होना चाहिए ऐसा नम्रन होना चाहिए ऐसा सुनसो होना चाहिए ऐसा विचार होना चाहिए फिर संघर्ष का छस का रास्ता क्लियर है अन्यथा पाखंडी हो जाते हैं ना हम लोग पाखंडी नहीं बनना है भगवान बुद्ध ने पाखंडी बनना नहीं पाखंडी पता है मुंह में राम बगल में चूरी वाला वो नहीं होना चाहिए फिर हम लोग नंबर संजय पर नहीं है क्योंकि कभी कभी गुरु को कड़वा बोलना पड़ता है कड़वा में मिठास होता है ना आप शुगर के पेशेंट है तो हमेशा जलेबी खाते रहोगे तो आप मर जाओगे शुगर का पेशेंट है तो कड़वा करेला खाते रहोगे तो आप रिकवरी हो जाओगे तो इसलिए कभी कभी गुरु लोगों को भी करेला का जूस पिलाना पड़ता है लोग समझ गए ना इससे भावना अच्छा हो जाता है जवाब 닝제 친구 공부했다. 예터를 레직 셈chen 냥베 셈chen 강인바 되다 다니 준비치 유르라 사와라서 베동알나서 초로 정화 코나 있노. 대내 전된데 지가서 봐. 대신도 희단 남장 파지 신도 미제 베테바단 콤베 동알지 메감베 리신도 동알 망본 영어. 제가서도 둔도 남장 찍라씩 자와단 토와단 소바단 넘버 세와라 소베 동알 남바 망고 영화 코나 나노. 아니 미 남장 도바 용수 철외 폭내 찍라 찍도 코와당 너브라지바당 두바당 다와당 미들바당 태바당 울폭내 줄바라 수베 동월바도 메바 냠순 용으로 나무 강다 도차라 수베 용몬베 군내 기바 나소지 셈기바 다 강다 다와님바 나소바 징징브라 줄바 대 탐제장 동월지 주힘베 주힘베
ये काना धुपा सिंधु सिंधु धुआं वखोना इनो। ये कह रहे हैं संसार क्या चीज है, संसार दुखों का कह रहे हैं। नरक में अगर उत्पन्न हो जाएगा तो नलवा में उत्पन्न हो जाएगा तो वहां पर पूरा छावे नलवा ढंगे नलवा है ना, छावा की नलवा ढंगे नलवा है ना, गर्मी वाला नरक और ठंड वाला नरक पूरा दुखी दुखी है। अगर हिडक में जन्म लिया, प्रेत में जन्म लिया तो हमेशा भूख प्यास से मरना है, वो दुख है। अगर पशु में करना हो तो एक बड़ा पशु छोटा को खा जाता है, जीव जंतु, और उनके अंदर बिल्कुल अज्ञानता होता है, एक दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं गुस्सा करते हैं, उसके अंदर अपना कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं है। कसाई लोग ले जाते हैं, गाजर मूल की तरह काटते हैं, कोई दान के लिए, कोई क्या कहते हैं उसके पापा के लिए, चमड़े के लिए करके उनके अंदर दुखी दुखी है पशुओं का। और हम ठहरे आदमी, आदमी में भी कहाँ सुख है, सुख है नहीं है ना। एक दूसरों के ऊपर हानि पहुंचाना, क्रोध होना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ठाडोक करना, जो चाहिए वो नहीं मिलना, जो नहीं चाहिए वो मिलना, और जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना, मर जाना, दुखी दुख तो है ना, कहाँ सुख है बोलते, सब दुखी दुखी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे मन से भगवान बुद्ध की अमृत वाणी द्वारा हमारे अंदर जो जिम्बा है, छकबा है, अटैचमेंट, राख है, द्वेष है, अज्ञान की भावना है, उसको कम करते जाना है, दया की भावना को बढ़ाते जाना है। तो इससे सही सुख का आभास होगा। असली देवा जो है संगेश के छस के जिल्लभ के अंदर है, वो खुद को जिल्लभ लाना है। संगेश ले जिल्लभ बोल के नहीं देते हैं। अपने अंदर दब्बा होगा तो संगेश का कुंडा भी हिलते हुए नजर आएगा, मुस्कुराते हुए नजर आएगा। आपके अंदर दब्बा है नहीं है तो मूर्ति तो बना होता है, कुंडा का मतलब मूर्ति, मूर्ति तो क्या है, मिट्टी का बना होता है, सोने का बना होता है, हीरे का, लकड़ी का बना होता है, वो तो लकड़ी है, सोना है, चांदी है, मिट्टी है। अगर आपके अंदर श्रद्धा दब्बा होगा तो संगेश के को भी मुस्कुराते हुए नजर आएगा। कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि आप शुद्ध हो, आप शुद्ध हो तभी संगेश भी शुद्ध दिखाई देगा। आपके अंदर कपट है, उल्टा सीधा है तो छक करो, जो भी करो, चलो दूसरे कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, कि एक परंपरा बना लेता है, एक रीति रिवाज जैसा बन जाता है, वो असली धर्म नहीं रह जाता है। तो इस तरह से हम लोग को समझना चाहिए। 강다 도자라서 변용무바 군니티파 나소지 셈티파다 강다 तावानियम्पा नासोपा नासो जिंगजम्ब्रजेवा देदा थमजीजन दुंगलजी जुइंबे। मतलब जो विचित्रता हमारे अंदर है, अनेक प्रकार के है ना, अनेक प्रकार के हम लोग ने अपना वो बना के रखा हुआ है, दायरा बना के रखा हुआ है, परंपरा बना के रखा है। मैं इस परंपरा पर चल रहा हूँ, तुम इस परंपरा पर नहीं चल रहे हो, और अनेक प्रकार के अंदर छुड़ुक टाइप का बना के रखा हुआ, स्वयं को जिंग कर रहे हो। जितना स्वयं को जिंग करोगे, स्वयं मतलब चित्त को जितना विचलित करोगे उतना दुख पाओगे। और दुख जो है खुद के द्वारा बनाया गया है। कोई प्रभु आपको दुख नहीं देता है, कोई अल्लाह आपको दुख नहीं देता है, कोई अल्लाह या प्रभु आपको सुख नहीं देता है। सुख चाहिए तो हमको खुद प्रयत्न करना है, दुखी होना है तो फिर हम तो दुखी है ही हैं, तो इसी रास्ते पर चलते हैं तो दुखी दुख होगा। समझ गए ना? तो ऐसा है। 남장 탐치주비 두 중앙이지 동화와 다때에서 도바나 주비 라 강다 힘바 대다지 딱도 침포와당 동화라서 배 집에 능인지 셈라 점바 대tarpe 두지지 동화 민니스 레당 놈몽베 천지 주의 신지 왕봉 어머니인데 개책 레레라 집에 망신지 천지다 도와 탐지라 차파히노 대베나 도와 타다기 동화지 매체 바르베 낭도 슈바 힘바 때라 जितना था तुम्हें मितो पातर जन थमचे चंग देता दाओ नमदो समशिंग चेमा चेहु थाला धुपे समजन देता तुम्हारा दे लेस जितना थरबर जा शे धांगी तुम्हारा वाशिंदु जे चिंग्स देता थरबर दुपे नंबे निंजे ते तिंगे जन ला धुप चंग रूम चलम थमचे तो yang रूम ते दुई थमचे तो समजन थमचे ला घुमरा जाते थोमा खोना घासे जी छोक नमला जिके में पे तुम्हारा नाचो नमसु योंगरा थोंगे घुमरा जाओ बोलते। दोबारा कह रहे हैं कि संसार में दुखी है और हर एक इंसान जो है सुख चाहता है, कोई दुखी नहीं चाहता है। फिर बेकार में हम लोग क्यों अपने सुख के लिए दौड़ धूप करें? सभी के सुख के लिए कामना करना, सभी को दुख को हटाने के लिए कामना करना चाहिए। और इस तरह से जो दुख है उसको किस तरह से हटाने का प्रयोग करना चाहिए? सबसे पहले अपने परिवार के अंदर सुख शांति की कामना करो बोलते कि परिवार के अंदर 10-15 परिवार के सदस्य हैं, वहां भी सुख नहीं होता है, वहां भी झगड़ा चलता है, आपको पता है ना। तो वहां पर आप उसको शांत करके वहां पर सुखी की भावना के साथ अपने को पेशेंस करके, अपने को टॉलरेंस में ला करके, सहनशीलता के साथ, गतिशील बन करके, सहजता के साथ वहां सुख लेने के प्रयोग करो। उसके बाद किसी दूसरे परिवार पे, उसके बाद मन को बढ़ाते जाओ। इस तरह से प्रैक्टिकल रूप में जो है चित्त को सुधारने की
कोशिश करना चाहिए बोल रहे। ये निंजे के बारे में बताया और थोड़ा सा नीति तक पढ़ना है मुझे। तेना सिमचन न्यम्पा नी जेदा में पाथों में सिमचन थम चिने दागी निंदु जो खुना हो नम तो योंसु समसिंग घर में छो नमला गुमरा जाओ। उसके बाद धीरे धीरे ये संसार ही तो घर है, ये संसार ही तो घर है। संसार की जितना परिवार है, संसार की जितना प्राणी है, वो सब मेरे परिवार के सदस्य हैं बोल के ऐसा सोचो बोल रहे। कैसा फिर ऐसा गोम लगाओ। गोम लगाने का मतलब विचार करना है, भावना पहले विचार करना है, फिर आंख पिगरे बंद करके पूरा करके सही में यह संसार अपना घर है, संसार के प्राणी मेरे घर के परिवार के सदस्य हैं, समझ के सब सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो है। केवल ऐसा सोचने से भी नहीं है कीड़े मकोड़े को मार रहा है काट रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। तो वहां ध्यान देने का है। 강기체 대라 자세치 출신도 닝제대 냠브라 주브라 주바 대체 촉주 심전 탐제라 검브라자오 강기체 부충 닝두 와 둥알브라 주베 마신도 당니치 신도 독바 둥알발에 덤브라도베 남바 한기 주베 닝제 심전 탐제라 냠브라 주브라 주바 대체 जोपा शेष जाते निंजे छिंपो मिनियों थोपो एक समय ऐसा आएगा बोल रहे, इस तरह से भावना करके निंजे का भावना करके, जैसा एक माता है, उसके माता के पास एक इकलौता बेटा या बेटी है और बहुत प्यारा है, उस इकलौता बेटा या बेटी के साथ उस माँ का कितना स्नेह होगा, कितना ममता से भरा होगा बेटी है ना, कितना प्यार होता है। इसी तरह एक समय ऐसा आएगा कि सभी संस्कृतियों के प्रति एक इकलौता माता, इकलौता बेटी या बेटा के माता कितना प्यार करता है अपने उस बेटी या बेटा को, वैसा ही सभी प्राणियों के प्रति इतना प्यार और मोहब्बत बढ़ के आ जाएगा बोलते हैं ऑटोमेटिकली शख्स का नमने के जिन्नत के द्वारा। तब समझना बोल रहे हैं कि क्या होता है निंजे, तब आपको पता लग जाएगा और कितना आप खुशी महसूस करेंगे, कितना खुशी महसूस करेंगे अगर इस तरह की भावना हो तो। संसार में जो खुशी होता है वो सही खुशी नहीं है ना। आजकल तो खुशी का परिभाषा ही बदल गया है ना सर जी। क्या परिभाषा बदल गया? आपके पास फैसिलिटी अच्छा रुपये पे साथ साथ आप खुशी है समझते हैं। खुशी है लेकिन वो टेम्परेरी है, बहुत पैसा खत्म हो गया वैसे ही आपका चेहरा मुरझा जाएगा, क्योंकि पैसे ने आपको चढ़ा के रखा ना। पिछले साल आपका 1 करोड़ में सेव किया, वो बगीचे का बगीचा बांध ले गया तो आप तो मुरझा जाएंगे, दिल तो फट जाएगा, मर भी जाएंगे। तो आपने सोच लिया मेरा बगीचा जो हमेशा रहने वाला है, मेरा परमानेंट इनकम है, पहले से आपने पिक्चर बना लिया, मिटक पता आपको आता नहीं है, सब गुजर के जाना, सब खत्म हो रहा है, वो तो पता नहीं है। वो बगीचा हट गया। मैंने सुना था कि पांगी वगैरह में कहीं प्रोजेक्ट में चला गया, कहीं बाढ़ चला गया, कई लोगों का हार्ट अटैक हो गया, सुना था। क्यों? आपको पता नहीं है ना, दुनिया जो है अनित्य है, मर के जाना है। अगर जमशुक सिंपा का इस तरह की दया का भावना सब होता, बगीचा तो क्या शरीर भी गुजर जा रहा है तो वो भावना साथ में चलता है, फिर भी बहुत शक्ति आ जाती है। श्वास का दमन करने वाला व्यक्ति, एक डॉक्टर बताता है कि आपको कैंसर है, आप 3 महीने में मरने वाले हैं। अब ये व्यक्ति जमशुक का सिम वाला है, वो डरता नहीं है, कैंसर है तो होना ही था, तो क्या डरता भी नहीं है, डर ही नहीं है वो, बल्कि मेडिटेशन करेगा, दया की भावना में, वो व्यक्ति पूरा 80 साल तक जी जाता है। वो कैंसर वगैरह सब रिकवर हो जा रहा है। अमेरिका में ऐसा कई बार हुआ भी। क्यों हुआ? संगीत का छस का झिल्लक। आदमी जल्दी क्यों मरता है? कैंसर हो तो डर जाता है, डर के पहले मर जाता है, समय से पहले, क्योंकि नहीं मरना है ना। तो मरना है तो गोम लगाना है तो गोम लगाओ, कैमरो लगाओ, वो रिकवर हो जाता है। और डॉक्टर जो इलाज नहीं कर पाए ना, वो गोम जमने से रिकवरी हो जाता है। वो दूसरे व्यक्ति से, डॉक्टर से भी ज्यादा चीज है। डॉक्टर मर जाता है, जिसने कहा तो 3 महीने के बाद मर जाएगा, वो डॉक्टर पहले मर जाता है, और जो मरने वाला है नहीं मर के बैठ जाता है। समझ में संख्या की छत की जिला ऐसा है। खासकर ये कैंसर वगैरह, इसका सबसे बड़ा दवा है। गोम जमने करना आएगा तो सबसे बड़ा दवा ये है। डॉक्टर तो आपको छुट्टी दे देंगे। सेल सब हमारे बॉडी में कोशिकाएं होती है ना, वो डेथ हो गया, वहां उल्टा हो जाए, उसको सिर्फ मेडिटेशन ही इलाज करता है। सही में मेडिटेशन करना आपको आ गया ना, तो वहां बहुत फायदा होता है। और बर्दो वगैरह में, बर्दो का मैं सिंगापुर में था, बर्दो थिएटर पढ़ा रहा था जमीलों को, तो वो कह रहे हैं गुरुजी यार आप बैठो, अभी बैठिए। और भी मैं बोला मेरा समय है, यहाँ मैंने पोस्टर छपा दिया, गुरुजी को बोला था पोस्टर लाओ, मुझे यहाँ आना था, नहीं तो वो छोड़ ही नहीं रहे। वहाँ बोल रहा है कि इतना एनर्जेटिक टीचिंग है, कभी सुना ही नहीं, बोलते आपके अंदर इतना एनर्जी है, बोलता है कहाँ प्रिपरेशन करते हो, बोल रहे हैं लोग, कहाँ प्रिपरेशन करते हो, कैसे बताते हो, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत फायदा वाला है, बोलते दिल को छू जाता है। बोलते गुरुजी बैठो, बोलते ज्ञानी लोग आ करके ऐसा चेक कर रहे। मैं बोला अभी नहीं आ सकता हूँ, दोबारा आऊंगा, फिर मुझे 27 मार्च को फिर सिंगापुर जाना है दोबारा, है ना।
मतलब छस का जिल्लत जब समझ में आ जाता है ना, तो फिर मन जुड़ जाता है, फिर सुनने का मजा आता है और एक एनर्जी आ जाता है, जिल्लत आ जाता है। क्या है, मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, लेकिन ये जो वाणी आ रहा है, ये क्या वाणी है? ये बुद्ध की अमृत वाणी है ना। शरीर तो छोड़ना है, शरीर तो अमृत नहीं है ना, शरीर मृत है। मृत का मतलब मर जाने वाला है, शरीर मृत है। लेकिन अमृत क्या है? हमारी मन की धारा है। उस मन की धारा में संगस के छस का अमृत दूची आ गया ना, दूची, अमृत मतलब दूची, दूची बढ़ जाए तो मन में, मन तो दूची हो गया तो नहीं मरने वाला है ना, वो नहीं मरने वाला उसको कहते हैं निश्चय ज्ञान कहते हैं। निम्बालो कहते हैं रिक्पा, सहज ज्ञान, वो नहीं मरता है, वो नहीं मरने वाला ज्ञान, उसका नाम संगस है। संगस का कुली भी तो मर जाते हैं ना, संगस का कुली संगस नहीं है, संगस के अंदर जो ज्ञान है वो संगस है। उस ज्ञान को हम में लाना है। हमारा चित्त जो है, मन जो है, पूरा कीचड़ से लिपटा हुआ है। कीचड़ मतलब उल्टी भावना से, मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैं है ही नहीं है, मेरा है ही नहीं है, तो क्या मैं मेरा बना के रखा है हम लोग? जब मर जाएगा तो मैं बोल के छाती को, वो छाती ही फट रहा है तो क्या है, वो तो जाएगा नहीं साथ में। अब मेरा है बोल के पूरा बैंक में पैसा जमा करके रखा, पूरा रखा हो, तो वो तो आप उठा के नहीं ले जाओगे, एक सुई ले जाने की औकात नहीं है, तो क्या बैंक का डिपॉजिट ले जाओगे? वो तो गवर्नमेंट नहीं ले रहा है अभी, समझ गए ना? क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं ले जाओगे, सुई भी नहीं ले जाओगे, शरीर भी साथ नहीं जाता, फिर क्या मैं मेरा है? मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं मेरा नहीं है, मैं क्षमपो हूं, आप लोग मेरे शिष्य हैं आज है, लेकिन ये मिलम है ना, मिलम सपना है, ये सपना है, मिलम है। मिलम लोग तुम चिंता को दूजे छिनम देते रहता धुर्जे चौपा में संगे चुमने दे, मिलम है, मिलम, ये सपना है, लंबा सपना है, ये छोटा सपना नहीं है, 50 साल के लिए सपना है। ये सब जिनके घर में कोई गुजरा होगा तो याद करो यार, वो सपना नहीं है। पहले आपके माँ बाप थे प्यारे, गुजर गए, सपना जैसा है ना, अभी नहीं है। कोई आपके बेटा बेटी गुजर गए, सपना जैसा है ना, नहीं है ना, वैसे ही हम भी ऐसा है ना। तो ये सपना है, सपना को सपना सोचो, सपना को असलियत मत सोचो, फिर सबके अंदर प्रेम भावना आ जाएगी, ये निंजे वाला भावना आ जाएगा, समझे कि छत वाला भावना। फिर मुस्कुराते हुए जीना है, किसी के ऊपर कपट नहीं करना, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, मने क्या टो लगाए हुए तो यार जिंदगी सबका एक नेचर है, कोई भी एक टोला ऊपर ना नीचे, कुछ भी नहीं है। असलियत, लाल खून, 2 पैर, 1 सिर, ये मीट हड्डी और इसका बना हुआ ढांचा है ना, ये क्या किया, हड्डी का जो कॉलम के ऊपर मीट और खून का प्लास्टर लगा हुआ, ये बॉडी जब तक चलना है चलता है, जैसे बिल्डिंग गिर जाता है भरभरा करके, ये भी गिर जाता है भरभरा करके। लेकिन अंदर जो हमारे अंदर जो हमें जो कंट्रोल करने वाली चीज जो सन है ना, यही सब कुछ है, यही संगे से जाने का, तो यही देवता है, देवता बाहर नहीं होता है, यही देवता है, यही बुद्ध है। बुद्ध को अंदर देखना चाहिए, अंदर का बुद्ध समझ में आ जाएगा तो मूर्ति में भी बुद्ध नजर आएगा। अंदर आप राक्षस है तो क्या बुद्ध नजर आएगा? वो तो आपने गरीब, आप अमीर होंगे तो चोकल अच्छा बनाया होगा, पन को ला करके हमने अच्छा किया होगा, डंडम बुंडम बहुत अच्छा किया होगा, वो लोगों को दिखाने, शिंगारा बोलते हैं ना हमारे किन्नौर में, शिंगारा दो, डींग मारना, डींग मारना बुद्ध ने नहीं सिखाया। अगर डींग मारना बुद्ध ने सिखाया तो रात में बैठ करके राजा का मुकुट डाल करके प्रवचन करते। संगस चले कहां गया? वाराणसी में, कहा पूरा पेड़ के नीचे, खुला वातावरण के नीचे है ना, ये जानना बहुत